हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अब तक जो हमने पुस्तक पढ़ी है उसका आगे का भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम यहाँ देखते हैं ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। ब्रिटिश first started the trade on the banks of the river Hooghly and established forts in the year 1651। 1651 में उन्होंने किला बनाना शुरू कर दिया और अपना व्यापार शुरू कर दिया। The forts were garrisoned. The forts were garrisoned for their protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment। अब क्या हुआ कि जहांगीर ने तो मना कर दिया। जहांगीर के बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां ने उसको परमिशन दे दी कि भाई आप लोग व्यापार करो, ठीक है, लेकिन टैक्स भरो। अब आता है इसके बाद में औरंगजेब। अब औरंगजेब ने तो नए फरमान सुना दिया कि भाई आप जो है वो पेमेंट जो है वो मत दो, ठीक है, रेगुलर पेमेंट मत दो, एनुअल पेमेंट जो है उसके खिलाफ आप जो है विदाउट पेमेंट के आप काम कर सकते हो, ट्रेड करो, बराबर। Sure, go ahead and see. See, we can see here these are the forts, and some people are looking like Britishers, and they are, of course, Britishers, and they are coming for trading. And here we can see their success. And now you just have to watch some pictures of the maps of India, like it's a map of India from 1797. So we can see here is a map of India of the time of 1797. In 1797, only the light blue, light blue darkened areas were under the control of Britishers. So we can see Bengal, Calcutta, Madras. So this is the eastern part of India. So British East India Company ruled and were trading only in a western part, in eastern part of India. After that, in 1840, they were spreading their trading centers as well as their territory for trading. So this area, which was this time, this was this such area now spreading, and after 1856, here we can see a map of 1857. Here, this is the reverse map of 1797. The map of 1797 was just reversed in 1857। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो 1757 का जो मैप है उसमें बंगाल के ये जो कुछ हल्के ब्लू रंग के रंगे गए हैं, तो यही एरिया इसके अंडर में थे ब्रिटिश कंपनी के। लेकिन बाद में ये जो एरिया है और बढ़ते गए, और उसके बाद में ये जो 1757 का जो हमने मैप देखा इसका उल्टा ही रूप यहाँ पे हम इसको देखने लग जाता है। यानी कि ये जो 30% यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य की ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे, तो यहाँ पे खाली अब क्या हुआ, अब खाली 30% ही बाकी रह गए, यानी कि अब 70% इनके हो गए और 30% बाकी रह गए, यानी कि सीधा सा उल्टा यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, so now let's go ahead. The expansion of the British rule between 1757 to 1857, common era. So now we can see the British East India Company ruled for 100 years. After 100 years, or we can see after 1857, company rule was ended and British crown or crown rule came into force. By this time, only between this 100 year, East India Company was in a race to earn money, more money, and only the profit. They just wanted to earn profit as well as money only.
As per the order passed in Bengal, only the company availed the benefit of tax-free trading. So, Aurangzeb, as we have seen, that Aurangzeb has had given the permissions to trade in India for the Britishers, but he just gave the permissions to trade in a company manner. Okay, okay. So he had given the permissions for the British East India Company only, but however, many officers who were engaged in private trade did not pay the taxes as well. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि औरंगजेब ने जो ट्रेडिंग के लिए जो विदाउट टैक्स के लिए ट्रेडिशन के जो डायरेक्शन दिए थे, ऑर्डर दिया था, तो अभी ये कंपनी के लिए दिया था। ओनली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो केवल व्यापार कर सकती है बिना किसी टैक्स के। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ कि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, जो ऑफिसर थे, वो भी अपना खुद का प्राइवेट जो है वो बिजनेस शुरू करना शुरू हो गए थे, प्राइवेट जॉब में लगे हुए थे और प्राइवेट काम के लिए वो अपने इसमें कोई टैक्स नहीं देते थे। तो ये क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। एज ए रिजल्ट द इनकम जनरेटेड फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल हैज बीन रिड्यूस्ड व्हिच इन टर्न वाज अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। अब क्या हुआ कि ये जो इनकम जो होती थी टैक्स के माध्यम से पहले देते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो ऑफिसर है वो प्राइवेट जॉब के लिए या प्राइवेट काम के लिए नहीं देते थे, तो प्राइवेट बिजनेस करते करते जब टैक्स नहीं भर रहे थे तो बंगाल की जो आय है, बंगाल को जो मुनाफा होता था वो घटने लग गया था। अब उस समय जो बंगाल का नवाब था वो मुर्शिद कुली खान था। दिस डिस्प्यूट केप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान। अब जब ये नवाब मुर्शिद कुली खान था तब से लगा कि अली वर्दी खान तक ये समस्या आगे बढ़ती गई थी और भी आगे बढ़ती गई थी। देखते हैं हम, हिज सन, अब उसका लड़का आया था अली वर्दी खान का, सिराज उद्दौला took charge and he got involved in a major battle with the British। अब इसको उसके साथ में लड़ाई करनी पड़ी, यानी सिराजुद्दौला को अंग्रेजों से अब लड़ाई करनी पड़ी इस टैक्स के लिए। ठीक है, तो वो जो लड़ाई थी उसको हम बोलते हैं प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी, युद्ध प्लासी के युद्ध। So now we gathered informations and facts about the Battle of Plassey. Sirajuddaulah became Nawab of Bengal in the year 1756. So he became Nawab after his father's death. He had an overwhelming influence. This is the very crucial. This is the very crucial influence और द ब्रिटिश। अब उनको वो जलन तो करता ही था, लड़ाई झगड़ा तो उनके साथ में होता ही रहता था, बराबर। द ब्रिटिश helped the competitions of Sirajuddaulah by conspiring against him so that he would not remain on the throne of Bengal। अब ये जब ये इनको खलता था अंग्रेजों को, कौन, सिराजुद्दौला, तब अंग्रेजों ने सोचा कि अब इसको हटाएंगे हम और इसकी जगह कोई दूसरा एक आदमी हम रखेंगे जो अपनी बात मानेगा, अपने कठपुतली की तरह काम करेगा। तो उसने क्या किया कि इसके जो कॉम्पिटिटर थे, इसके भी दुश्मन थे, तो उसके दुश्मनों के साथ में उन्होंने षड्यंत्र रचने के लिए कुछ प्लान बनाया, बराबर, उनको अपने वश में करने के लिए कुछ योजना बनाई। There were frequent conflicts with the British merchants regarding payment of taxes। ये लगातार उनके साथ में dispute conflict होता रहता था। When British merchants failed to pay taxes which were applicable to both Indian as well as to foreign merchants, the situation came to a boil। अब इनको क्या हुआ कि जो टैक्स भारतीयों के लिए भी समान थे और जो ब्रिटिशर्स थे यानी फॉरेन वालों के लिए भी जो टैक्स भरना था वो कंपलसरी था। तो वो जब सिचुएशन जो भरने योग्य जो टैक्स है वो नहीं भरे गए थे, वो अंग्रेजों ने टैक्स भरने के लिए मना कर दिया था। तो क्या हुआ कि ही ऑर्डर्ड दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री। अब वो अपनी जो फैक्ट्री है उसमें किले बंदी नहीं करेंगे, जो फैक्ट्री है उसके चारों तरफ जो किला लगाते थे वो किले की दीवार खड़ी कर देते थे, तो अब वो किला नहीं बनाएंगे अपने फैक्ट्री के। ये इसने ऑर्डर दे दिया सिराजुद्दौला ने। एंड they would pay taxes as per the rules and trade as per the terms and conditions of Bengal। जो बंगाल के जो नियम थे, टर्म्स थी, कंडीशंस थी और जो ट्रेड से संबंधित जो नियम थे उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसने गाइडलाइन जारी कर दी, ठीक है, इसने आदेश दे दिया।
This provocations was enough for Siraj to opt for war. अब जब ये लोग मनाही कर रहे थे, अपने आदेश की पालना नहीं मान रहे थे, तो ये प्रोवोकेशन उसके लिए सही था। किसके लिए? सिराजुद्दौला के लिए। या वो अंग्रेजों से लड़ेगा, यानी उसे एक बहाना चाहिए ताकि जो अपने मुगल जो जो अपने मुगल के जो अपने मुगल जो अपने मुगल बादशाह थे उनको ये बात बताने के लिए, क्योंकि उस टाइम जो है औरंगजेब मुगल बादशाह थे। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। अब इसने कलकत्ता से जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको निकालने में, उनको खदेड़ने में और उनको बाहर भेजने में ये कामयाब हो गया था। लेकिन ये जो कामयाबी थी उसकी महक बस सपने की तरह ही थी, जो एकदम हकीकत में टूटने वाला था। क्योंकि ये इतनी सी लड़ाई से खुश नहीं हुआ था। ये इतना सा काम करके वो 30 मार खा नहीं बन पाया था। आगे हम देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। So let's go ahead. Sirajuddaula, the British counterattacked under the leadership of Robert Clive. So now we will see Robert Clive has come, and he was a colonel in Madras, and during that time, and he was called for assistant to fight with Sirajuddaula from Madras. So now, under the leadership of Robert Clive, he attacked. Counter-attack तो उनको करना ही था. He counter-attacked. Clive bribed. Clive bribed. Clive bribed Mir Zafar, the commanded the commander-in-chief of Sirajuddaula, with the promise to confer the throne of Bengal to him and convince him to join their side. अब ये जो षड्यंत्र रचा गया तो उसके द्वारा, इसके द्वारा लड़ा गया था, इसके द्वारा रचा गया था, इसके द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था कि ये जो जाफर था, मीर जाफर, इसको उसने अपने साइड में लेने के लिए इसको एक लालच दिया गया कि हम सिराजुद्दौला को उसकी राजगद्दी से हटा देंगे, बंगाल का नवाब जो है वो हम उसे हटा देंगे, और तुम तो खाली एक कमांडर हो, यानी कि एक सेनापति हो। तुम अगर सेनापति हो तो अगर तुमको नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, तो तुम हमारे वश में रहोगे, तुम्हारे मतलब कि तुम हमारे अंडर में रहोगे, मतलब कि फिर तुम जो सेनापति हो अभी, तो सेनापति से तुमको जो है बंगाल का नवाब हम बना देंगे, बराबर, तो तुम हमारी साइड में आ जाओ। इस तरह का कुछ लालच देकर उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच डाला। विद हिज हेल्प, अब उनकी उसी की मदद से, मीर जाफर की मदद से, रॉबर्ट क्लाइव defeated and murdered Sirajuddaula in the British in the Battle of Plassey. प्लासी का जो युद्ध हुआ उसमें उसने सिराजुद्दौला को हरा दिया और मार डाला, ठीक है। और जो मीर जाफर था उसको नवाब बना दिया गया। This was the first fought. This was the first war fought by the company in India, which marked the beginning of the British rule in India. Thus, this war is considered to be a turning point in the Indian history. इंडियन हिस्ट्री में हमारा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसी से ब्रिटिश कंपनी का रूल शुरू हो गया। ब्रिटिश कंपनी का रूल यहाँ से शुरू हो गया। So now go ahead. So Plassey, we should know about the Plassey. The Plassey got did. Do you know how Plassey got its name? Plassey का जो नाम है ऐसा कैसे पड़ा है? The original name is Parasi. जो ओरिजिनल नेम है प्लासी का वो पारासी है। The trees of Plas, प्लास के जो पेड़ है उसके नाम से इसका नाम प्लासी पड़ा है। The flowers of Plas trees are separate in color and this color is used in making colors for होली। और ये जो पलास का जो पेड़ है उसकी वजह से इसका नाम प्लासी पड़ा है, क्योंकि प्लास प्लास बोलते बोलते प्लासी हम इसको बोलने शुरू हो गए थे। So now the Battle of Buckshot. After winning the Battle of Plassey, they fight again second war with Indian Battle of Buckshot, and this battle is also related to
Bengal. As promised, the East India Company appointed Mr. Mir Zafar as Nawab of Bengal. Robert Clive also went back to England. अब इसको इसने अपना वादा निभा के नवाब बना दिया और खुद इंग्लैंड चला गया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। खुशी मनाने के लिए। With the passage of time, फिर समय बीता, मीर जाफर became hostile। अब ये जो है इसको राजा तो बना दिया गया, नवाब तो बना दिया गया, लेकिन ये इनके लिए भी हॉस्टिल बन गया, एनिमी बन गया, इनका भी दुश्मन, क्योंकि ये दुश्मनी तो होनी ही थी। ऐसे कि बंगाल जो है वो बिना टैक्स का एक राज्य बनने वाला था, यानी कि इसको कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा था बंगाल में, तो इस वजह से जो आय थी वो डाउन हो रही थी। अब जो नवाब को आय के बगैर तो लोगों का भला कैसे करेगा, प्रशासन कैसे चलाएगा, तो इस वजह से उसके आदमी को रहा नहीं था, तो खाली कहने को एक नवाब बन गया था वो, तो इस वजह से वो इसका दुश्मन बन गया था मीर जाफर भी। The company decided to replace him with his son-in-law, Mr. मीर कासिम। अब क्या हुआ कि वो जो मीर जाफर जो है वो उनके लिए थोड़ा सिरदर्द बन रहा था, तब उन्होंने उसके दामाद को, मीर जाफर का एक दामाद था मीर कासिम, उसको अपना इनको रिप्लेस करना चाहते थे, यानी कि इसको हटा के इसको लगाना चाहते थे। मीर कासिम was an efficient Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler। अब तुलना में जो ये efficient था, disciplined था और उसके पास cleverness थी, यानी चतुराई थी। The problem arose between Nawab and the company on the account of non-payment। non-payment जो है of taxes, टैक्स जो है वो नहीं भरे जा रहे थे, तो अभी ये क्या कर लेगा कासिम जो है, वो भी तो उसको भी तो लड़ाई करनी पड़ेगी, which ultimately brought both the forces face to face with each other in the Battle of Buckshire. In 1763, Mr. Qasim was defeated by the company, but he escaped। अब यहाँ पे 1763 में जो युद्ध हुआ था, छोटा मोटा हुआ था, तो इसमें ये बच गया था मीर कासिम, और वो चला गया कहाँ पे? लखनऊ में, अवध, उसमें लखनऊ को अवध कहते हैं, तो यहाँ से भाग गया वो और अपने लखनऊ की तरफ भाग गया। ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी, और वहाँ उसने अपनी जो आर्मी है उसको वापस संगठित किया, along with the forces of Nawab of Awadh सुजा-उद-दौला। अब अवध का जो नवाब था वो था सुजा-उद-दौला। पहले हमने पढ़ा सिराज-उद-दौला, अब है सुजा-उद-दौला, तो बस नाम में थोड़ा डिफरेंस है, तो ध्यान रखना, सुजा और सिराज, सिराज-उद-दौला, सुजा-उद-दौला। तो नवाब था ये, यू आता है तो इसके लिए हम याद रखेंगे ये अवध क्या है, सिराज में यू नहीं आता है, तो ठीक है। नवाब ऑफ अवध का जो था उसके साथ में एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। मुगल का जो एम्परर था वो औरंगजेब अब नहीं रहा, अब था शाह आलम सेकंड। तो अब जो है ये बात है 1764 की, बराबर? नहीं सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं देयर कंबाइंड फोर्सेस किस किस की, जौदुल्ला, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड द नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, ठीक है। ये तीनों की तिगड़ी यहाँ पे मिल गई थी एंड मैट कंपनी फोर्सेस एट बक्सर, और यहाँ पे मिलती है 1764 में। The British East India Company won the war and all of a sudden Bengal, Awadh, Lucknow, Awadh known as Lucknow and Mughal Empire was under their control। अब क्या हुआ, इन तीनों को ही हरा दिया कंपनी ने, ठीक है। ये बहुत बड़ा रहस्य है कि इन तीनों की शक्ति भी अंग्रेजों के सामने काम नहीं कर पाई, क्योंकि इनके पास जो चतुराई थी, टेक्नोलॉजी थी, जो कूटनीति थी, वो इनके पास नहीं थी। किनके पास नहीं थी? ये तिगड़े के पास नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव वाज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वापस उसको इंग्लैंड से वापस भेजा गया, जो चला गया था। दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अ ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज्ड एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सबकॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से ये जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी बन के आई तो थी 1757 में, लेकिन ये एक ट्रेडिंग कंपनी की जगह ये क्या बन गई थी? पॉलिटिकल पावर बन गई थी।
So now this chapter has been ended, and you have to do some exercise as per your thoughts because you have to self exercise for these questions. So now first question is that why did the European feel the need to discover a new sea route? You have to just know that land route was captured by Muslims, Constantinople, and we can say it Istanbul. Okay, that's why they need to discover a new sea route for trading in India. Who were the first European company? The Portuguese were the first, and the last were the French. So between whom was the Battle of Plassey? Plassey के किसके बीच में लड़ा गया? And what was the result? You have to tell. Sirajudollah or Sudauddin. You have to tell, and the result you should know. Mir Qasim or Mir Zafar. These are some confusing questions you should know, and you have to remember it. Remember these. Why did Battle of Buxar occur? What was its result? Battle of Buxar, Mir Qasim or Mir Zafar, and you have to also tell its result. How did the Portuguese rule come to an end? You have to tell about Sanja as well in this question. So you have to fill some blanks in this chapter. The Das was an Italian who accepted the challenge to discover sea route to India. Who was the first? It was Christopher Columbus. Robert Clive conspired to murder Sirajudollah or Sudauddin. You have to tell. Okay. आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. थैंक्स एंड हैव ए गुड डे.